Hey, my little boys and girls, welcome back to the very interesting maths class, which is going to be more exciting today. So, let's start our next question of exercise 1J from the chapter Looking Back. Kids, these questions are based on some stories, which are called word problems or story problems. Before starting, just watch something. Story Problems Addition. Let us look at some addition story problems. There are 2 monkeys on the tree. One more monkey joins in. How many monkeys are on the tree now? We need to add the 2 numbers, that is 2 plus 1 is equal to 3. So, now there are 3 monkeys on the tree. Story Problems Subtraction. Let us solve some subtraction story problems. For example, there are 3 apples in a plate. Jenny ate one of them. How many apples are left in the plate now? 3 minus 1 is equal to 2. Therefore, now there are 2 apples left in the plate. There are 9 frogs on a log. 3 frogs jump off. How many frogs are left on the log? 9 minus 3 is equal to 6. 6 frogs are left on the log. So kids, as you have seen these problems, we are going to solve the word problems of question number 2. But firstly, I want to tell you something very interesting and very important. That is addition words and subtraction words. Addition words are in all, increased by, combine, add, plus, sum, altogether, more than. What is this? मतलब addition words क्या होते हैं? Kids, addition words mean if we see any of these words in any problem, यानी कि अगर हमें ऐसे words किसी भी word problem में दिखते हैं, it means we have to do the addition. And if I talk about the subtraction words like left, deduct, less, difference, minus, fewer than, subtract, take away, decrease. It means अगर हमें किसी भी word problem में ऐसे words दिखते हैं, ये words दिखते हैं, तो it means we have to do the subtraction there in that problem. So kids, let's come to the question, and the question number A is 8 birds sat on a wire. कितनी birds? 8 birds. 3 flew away. How many were left? It means कि एक वायर पे 8 birds बैठी हुई थी and 3 flew away. उसमें से 3 उड़ जाती हैं. Then how many were left? It means कि अब वायर पे कितनी birds बचती हैं. So start the solution. Kids, I want to tell you कि you should read the question twice. अगर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है तो यू विल हैव टू रीड इट ट्वाइस. ओके, इसको 2 बार ज़रूर रीड करिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दैट क्या पूछा जा रहा है. ओके, सो कम टू द सोल्यूशन. एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू सर्च अ वर्ड. हमें कोई एक वर्ड ढूंढना होगा एंड यू कैन सी द वर्ड लेफ्ट हियर. आप ये वर्ड देख सकते हैं लेफ्ट. एंड मैंने आपको बताया है इससे पहले
कि जब हमें ये वर्ड दिख जाता है किसी भी प्रॉब्लम में, इट मीन्स वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन देयर. हमें उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ बर्ड्स sat on a wire. It means कि जो वायर है उस पे कितनी बर्ड्स बैठी हुई थी is equal to 8. Then kids, if we don't wanna write any word, अगर हम किसी भी वर्ड को दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो वी यूज़ डिट्टो मार्क्स देयर. हम वहाँ पे डिट्टो मार्क्स यूज़ करते हैं. जैसे नंबर के लिए हमने डिट्टो मार्क यूज़ किया, ऑफ के लिए, देन बर्ड्स के लिए. तो इट विल बिकम नंबर ऑफ बर्ड्स. ये क्या बन गया? नंबर ऑफ बर्ड्स. तो नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लेव अवे. कितनी बर्ड्स उड़ जाती हैं उसमें से? इज इक्वल टू 3. देन नंबर ऑफ बर्ड्स, वही चीज़, डिट्टो मार्क्स. ओके, नंबर ऑफ बर्ड्स वर लेफ्ट. उसमें से कितनी बर्ड्स बचती हैं? माइनस का सिंबल. 8 माइनस 3. 8 में से 3 बर्ड्स फ्लाई कर जाती हैं. तो कितनी बर्ड्स बचती हैं वायर पे? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. Yes. Okay, so our answer will be 5 birds were left. Okay, let's come to our next question. Question number 2. And our question number 2 is question number B. 3 boys were playing football. 2 more boys came along and played football with them. How many boys in all were playing football? It means कि 3 boys फुटबॉल खेल रहे थे. How many boys? 3 boys. 2 more boys came along and played football with them. उसमें 3 जो boys खेल रहे थे उनके पास में 2 boys और आ जाते हैं and they started playing with them. वो उनके साथ में प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं. नाउ वी हैव टू टेल कि अब टोटल कितने बच्चे, कितने बॉयज़ वहाँ पर प्ले कर रहे हैं. हाउ मैनी बॉयज़ इन ऑल. जस्ट सोचिए क्या होगा यहाँ पे इन ऑल. आई हैव टोल्ड यू कि अगर हमें कहीं पर ये वर्ड्स दिख जाते हैं इन ऑल, इट मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन देयर. Okay, so let's see the solution. Firstly, number of boys playing football. Number of boys playing football. कितने boys play कर रहे थे? 3. बिल्कुल वैसे ही डिट्टो मार्क्स. Number of boys joined them. 2. 3 boys को 2 boys ने join किया आके and they started playing with them ना. Then total number of boys playing football. अब हमें बताना है कि कितने boys total play कर रहे थे वहाँ पे in all. और जहाँ in all की बात आती है हम वहाँ पे addition करते हैं. So 3 plus 2. 3 plus 2 is equal to 5. Okay. So the answer will be 5 boys in all were playing football. यानी कि 5 boys टोटल 5 boys वहाँ पर प्ले कर रहे थे फुटबॉल. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर C. एंड द क्वेश्चन नंबर C इज, लेट्स रीड. संजय हैड 7 rupees. संजय के पास में 7 rupees थे. ओके, ही स्पेंट 4 rupees. और उसमें से उसने 4 rupees खर्च कर दिए. हाउ मैनी rupees आर लेफ्ट विद हिम. अब उसके पास में कितने rupees बचे हुए हैं? संजय के पास में 7 rupees थे और उसमें से उसने 4 rupees स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए. अब हमें बताना है कि उसके पास अब कितने rupees बचे हुए हैं. ओके, सो जस्ट सी द सोल्यूशन. नो,
मैंने अभी आपको बताया वी हैव गॉट द वर्ड. कोई वर्ड आपको दिख रहा है इसमें से? कौन सा वर्ड दिख रहा है? यस, वी हैव सीन द वर्ड लेफ्ट. और जहाँ लेफ्ट वर्ड आता है, व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं वहाँ पे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन. वी डू द सब्ट्रैक्शन. वेरी गुड. लेट्स कम टू द सोल्यूशन. नंबर ऑफ रुपीज संजय हैड. संजय के पास में कितने रुपीज थे? रुपीज का सिंबल, वी विल हैव टू मेक द सिंबल ऑफ रुपीज. हमें रुपीज का सिंबल ज़रूर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ विल वी गेट टू नो कि ये नंबर है, ओनली नंबर है या रुपीज हैं. ओके, सो 7 रुपीज. ओके, संजय के पास में 7 रुपीज थे. देन डिटो मार्क्स फॉर नंबर ऑफ रुपीज. तो नंबर ऑफ रुपीज ही स्पेंट, उसने कितने रुपीज खर्च कर दिए? 4 रुपीज. नेक्स्ट, देन नंबर ऑफ रुपीज लेफ्ट विद हिम, उसके पास में अब कितने रुपीज बचे? जब लेफ्ट की बात आ गई तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है. एंड द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, एंड 7 minus 4. 7 में से 4 रुपीज उसने खर्च कर दिए. हाउ मेनी रुपीज आर देयर विद हिम? 7 minus 4. यस, 3 रुपीज. अब उसके पास में सिर्फ 3 रुपीज बचे. एंड द आंसर विल बी रुपीज 3. 3 रुपीज वर लेफ्ट विद संजय. ओके, डिड यू गेट इट? ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर D. Just read. Ashok had 4 books on the table. यानी कि अशोक के पास में 4 बुक्स टेबल पर रखी हुई थी. 5 in his bag. 5 उसके बैग में रखी हुई थी. And 7 on the shelf. और 7 शेल्फ पर रखी हुई थी. How many books did he have in all? यानी कि अशोक के पास में 4 बुक्स टेबल पे रखी थी, 5 बुक्स बैग के अंदर रखी हुई थी, 7 बुक्स शेल्फ के ऊपर रखी हुई थी. हमें बताना है कि टोटल बुक्स उसके पास में कितनी हैं. ओके, सो जहाँ पे इन ऑल आया, वी हैव सीन द वर्ड इन ऑल, इट मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन हियर. ओके, सो लेट्स कम टू द सोल्यूशन. नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल. हम सारी जितनी भी बुक्स हैं उनकी उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. देन वी विल गेट द आंसर कि उसके पास में टोटल कितनी बुक्स हैं. ओके, सो नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल 4. नंबर ऑफ बुक्स इन हिज बैग 5. नंबर ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ 7. सो व्हाट इज टू बी डन? टोटल नंबर ऑफ बुक्स ही हैड, उसके पास में कितनी बुक्स हैं अब टोटल? 4 + 5 + 7. इट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 और 5 को ऐड करेंगे. 4 + 5 = 9. 4 + 5 = 9. एंड 9 + 7 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, what did we get? 16. So, total number of books he had. अशोक के पास में अब कितनी बुक्स हैं? 16 बुक्स हैं टोटल. So, the answer will be Ashok had 16 books in all. अशोक के पास में टोटल 16 बुक्स हैं. Okay, let's come to the question number E, 5th question. And the question is, Sarita had 45 sweets. She gave away 19 sweets. How many sweets were left with her? It means कि सरिता के पास में 45 sweets थी. How many sweets? 45 sweets. And she gave away 19 sweets. और उसने 19 sweets किसी को दे दी. अब हमें बताना है जब 45 में से उसने 19 स्वीट्स दे दी तो अब उसके पास में कितनी स्वीट्स बची? हाउ मैनी स्वीट्स वर लेफ्ट विद हर. जहाँ पे हमने देखा लेफ्ट,
It means we have to do the subtraction here. Yes. Okay. So let's see the solution. Number of sweets Sarita had. सरिता के पास में कितनी स्वीट्स थी? 4, 5, 45. नंबर ऑफ स्वीट्स शी गेव अवे. और उसने कितनी स्वीट्स दे दी किसी को? 19, 19. अब हमें बताना है कि उसके पास में कितनी नंबर ऑफ स्वीट्स लेफ्ट विद हर. उसके साथ में उसके पास में कितनी स्वीट्स बचती हैं? व्हाट इज टू बी डन? सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन. let's see, ये 2 digit numbers हैं. Okay, तो we will have to divide it into ones and tens. हमें इसको ones और tens में divide करना पड़ेगा. Okay, so firstly we will do the subtraction of ones place digits, है ना. तो ones place की जो digits हैं that are 5 and 9. तो 5 को 9 में से हम 5 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज 5 इज लेस देन 9. ओके, व्हाट इज टू बी डन? क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू टेक अ बोरो. हमें एक बोरो लेना पड़ेगा. और क्या बोरो लेना पड़ेगा? एक टेंस. एंड जब हम यहाँ से एक टेंस बोरो कर लेंगे तो इट विल बिकम 15 इंस्टेड ऑफ 5. देन 4 की जगह पे जब हमने 110 ले लिया है तो 110 जब हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 की जगह पर 3 हो जाएगा. ओके, सो डू द सब्ट्रैक्शन. 15 minus 9. 15 minus 9 is equal to, yes, 6. Then come to the tens place. 3 minus 1 is equal to 2. So we have got the difference, that is 2, 6, 26. And this is our answer. 26 sweets were left with Sarita. अब सरिता के पास में कितनी sweets बची हैं? Only 26. Okay kids? So kids, that is all for today's maths class. Till our next video, goodbye and take care.